हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ मैजेस्टिक। आज हम करेंगे क्लास 10th चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं किया है तो यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। सो इस क्वेश्चन में हम एलिमिनेशन मैथड से इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, बट इसमें आपको सिचुएशन गिवन होगी एंड इक्वेशंस वी विल फॉर्मुलेट फर्स्ट। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। Form the pair of linear equations in the following problems and find their solutions if they exist by elimination method. So question 1 is this: if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. अगर आप किसी फ्रैक्शन, सपोज x by y इज फ्रैक्शन, आप 1 उसके न्यूमरेटर में ऐड करेंगे और 1 उसके डिनोमिनेटर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फ्रैक्शन विल रिड्यूस टू 1. And it becomes 1 by 2 if we add 1 to the denominator only. What is the fraction? So सबसे पहले हम इसमें एक fraction लेंगे. Let's take x by y as the fraction. Let x by y is the given fraction. X is the numerator and y is the denominator. Now according to the question, first equation will be if we add 1 to the numerator, x plus 1, and subtract 1 from the denominator, so y minus 1. Fraction reduces to 1. That means this will be equal to 1. So now first we will simplify this and find the equation. So we can do the cross multiplication. X plus 1 will be equal to y minus 1. So from there you can find x minus y. Y we will shift here, 1 we will shift on that side. So it will become minus 2. That means our equation will become x minus y is equal to minus 2. This is equation number 1. Now we will form the second equation. It becomes 1 by 2 if we only add 1 to the denominator. x by y fraction था, तो fraction 1 by 2 कब बन जाएगा? If we add only 1 in the denominator. सिर्फ denominator में add करेंगे, numerator में कोई change नहीं होगा. So अगर आप x as it is रखेंगे, denominator में 1 add करेंगे, so fraction will become 1 by 2. Now cross multiply करेंगे तो that means 2x will be equal to y plus 1. So 2x minus y is equal to 1 will be the equation number 2. Equation number 1 is x minus y minus 2 and equation number 2 we got as 2x minus y equal to 1. Now we have to simplify these equations using elimination method. So elimination method कैसे solve करना है, step by step हमने question 1 में कर लिया है. So अगर आपको अभी भी उसमें doubt है तो you can watch that video first. So इसके लिए हमें क्या करना होता है, coefficients of any variable we have to make same. अब यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 2 है, so they are not same. बट यहाँ भी -1 है और यहाँ भी -1, ऑलरेडी ये सेम ही है, तो हमें कुछ नहीं करना, जस्ट हमें इनको एलिमिनेट करना है y को. तो आप देखेंगे दोनों का साइन सेम है. अगर दोनों का साइन सेम है तो हम उसको क्या कर देंगे, सपोज दिस इज इक्वेशन 1 and 2. सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1. फर्स्ट इक्वेशन में से हम सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे एज इट इज. सो फर्स्ट इक्वेशन आपकी है x माइनस वाई इक्वल्स टू -2. सेकेंड है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1. तो हम इसके साइन चेंज कर देंगे क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. सो वी विल गेट x minus 2x will be minus x. It is cancelled and this is minus 3. That means value of x will be 3. अब now this x3 we can substitute in any of the given equation. Suppose x is equal to 3 हम put कर रहे हैं इस equation number 1 में. Substituting in equation 1. So equation 1 was x minus y equals to -2. x की वैल्यू इसमें 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास y आ जाएगा 3 plus 2 5. That means x is equal to 3 and y is equal to 5 we got here. So अब हमारे पास इसका मतलब we have to find the fraction. So fraction was x by y, that means 3 by 5. This is our answer. So in this manner we have to form the equation first and then we can solve them by elimination method. And if in the exam it is not mentioned कि आपको किस मेथड से करना है तो आप elimination या substitution, graphical किसी भी मेथड से सॉल्व करके दिखा सकते हैं. So let's move to the question number 2. स्टेटमेंट देखिए,
5 years ago, Nuri was thrice as old as Sonu. नूरी की एज सोनू से 3 गुना थी. 10 years later, नूरी will be twice as old as सोनू. 10 साल के बाद नूरी जो है वो सोनू से डबल हो जाएगी. हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू? इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस हमेशा आपको खुद को गिवन की जगह पर रख के सोचना होता है दैट इफ इट इज हैपनिंग टू यू तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे. सो 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड सोनू. सो अगर हमें उसकी 5 साल पहले या 10 साल बाद की एज निकालनी है तो हमें उनकी प्रेजेंट एज पता होनी चाहिए. सो इफ इट इज नॉट गिवन वी विल टेक लेट एक्स बी द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी एंड वाई बी द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू. दोनों की एक्स और वाई प्रेजेंट एजेस पहले हमने कंसीडर कर ली. नाउ अब 5 years अगो आपके पास 5 years अगो एज ऑफ नूरी कितनी हो जाएगी? x माइनस 5. नॉट डोंट राइट 5 माइनस एक्स, दैट विल बी रॉन्ग. अभी प्रेजेंट एज x है तो 5 साल पहले x माइनस 5 होगी. एंड 5 साल पहले सोनू की एज कितनी हो जाएगी? y माइनस 5. नाउ व्हाट इज गिवन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? 5 साल पहले नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू. तो नूरी की एज सोनू की एज का थ्राइस थी. सो नूरी की एज है x माइनस 5, सोनू की है y माइनस 5. नूरी की एज सोनू से थ्राइस थी, दैट मीन्स 3 गुना. तो दैट मीन्स वी कैन राइट द इक्वेशन लाइक दिस. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और नॉर्मल सिंपल इक्वेशन में हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे लीनियर इक्वेशन में. सो x माइनस 5 3 मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे, y से भी और 5 से भी. सो आपके पास इक्वेशन फॉर्मुलेट हो जाएगी x माइनस 3y, ये प्लस 5 होकर उधर बन जाएगा माइनस 10. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी विल मेक द सेकेंड इक्वेशन. अब आगे क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है. 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू. 10 years लेटर की बात हो रही है. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 10 years लेटर दोनों की एज x प्लस 10 और y प्लस 10 होगी. सो नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू. नूरी की एज सोनू की एज का ट्वाइस होगी 10 years के बाद. सो दैट मीन्स दिस इज नूरीज एज आफ्टर 10 years. ये है सोनू की एज 10 years के बाद. तो नूरी विल बी ट्वाइस ऑफ सोनू. सो दैट मीन्स दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम. इसको सिंप्लीफाई करने के लिए भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे. पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 2y प्लस 20. 2y को हम इधर ले आएंगे. x माइनस 2y, 10 उधर जाकर 10 बच जाएगा. 20 माइनस 10. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. आपके पास दोनों इक्वेशंस बन गई हैं. अब देखिए दोनों को एक साथ लिख लेते हैं ताकि हम इनको आसानी से सॉल्व कर सकें. पहली इक्वेशन है x माइनस 3y माइनस 10. सेकेंड है x माइनस 2y इक्वल्स टू 10. तो हमें एलिमिनेशन मेथड यूज करना है. तो देखिए कोफिशिएंट ऑलरेडी इन दोनों का 1 है तो इट इज सेम. तो अब हमें करना क्या है कि हम फर्स्ट में से सेकेंड को माइनस कर देंगे. तो ऑल द साइंस विल चेंज. जो भी साइन है इट इज कैंसल्ड. माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1y माइनस 10 माइनस 20. दैट मीन्स y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 20. सिमिलरली x की वैल्यू भी निकाल लेंगे. किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर देंगे. सपोज y 20 को आप पुट करते हैं इन इक्वेशन 1, दैट इज x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10. इसमें y की वैल्यू 20 पुट कर दें अगर हम तो हमारे पास क्या आ जाएगा? x माइनस 60 माइनस 10. सो x की वैल्यू आ गई माइनस 10 प्लस 60, दैट मीन्स 50. तो x आ गया 50, y 20. x हमने क्या लिया था? नूरी की प्रेजेंट एज. सो दैट मीन्स नूरीज प्रेजेंट एज कितनी हो गई आपकी? x, दैट इज 50 years. एंड सोनूज प्रेजेंट एज हो जाएगी आपकी y, दैट इज 20 years. So in this way first we will formulate the equation, then we will find the solution. So let's move to the question number 3. देखिए the sum of the digits of a 2-digit number is 9. Sum of the digits of a 2-digit number is 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. इसका मतलब जो भी आपका 2 डिजिट का नंबर है उसकी डिजिट्स को हम रिवर्स कर दें. जैसे 24 का 42 बना दें
तो वो जो नंबर आएगा दैट विल बी 9 टाइम्स ऑफ द नंबर. फाइंड द नंबर. अब देखिए, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9. तो सबसे पहले हम ले लेते हैं लेट x इज द यूनिट डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड y इज द टेंस डिजिट, ताकि हम x y दोनों से आप 2 डिजिट का एक नंबर फॉर्म कर सकें. सो दैट मीन्स रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, हेंस द नंबर इज 2 डिजिट नंबर. कौन सा हो जाएगा, क्योंकि y टेंस डिजिट है तो 10y एंड x यूनिट डिजिट है तो 10y प्लस x. देखिए सपोज जैसे आपके पास फॉर एग्जाम्पल, ये इसको समझाने के लिए मैं बता रही हूँ, 56 इज द नंबर. तो एक्सपेंडेड फॉर्म हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ी है. हाउ वी राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म, 5 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 1. दैट मीन्स टेंस डिजिट पे जो भी है उसको हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और वंस डिजिट को एज इट इज रह जाएगी क्योंकि 1 से करते हैं. तो वही हमने यहाँ किया है. आपके पास वंस डिजिट x थी, टेंस डिजिट y. दैट मीन्स 5 से अगर हम एक्सपेंडेड फॉर्म की बात करें तो 10 से हम y को मल्टीप्लाई करेंगे और x को 1 से. तो नंबर क्या बन गया, 10y प्लस x. तो इसका मतलब 2 डिजिट का नंबर जो है वो हमारा बन गया 10y प्लस x. अब देखिए, अब हमें क्या दिया हुआ है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज 9. पहली कंडीशन आपकी यहां से आएगी. दूसरी कंडीशन आएगी आपकी 9 टाइम्स दिस नंबर. इस नंबर का 9 टाइम्स ट्वाइस होगा उस नंबर से जो हमें रिवर्स करने पर मिलेगा. सो पहले हम इसकी रिवर्सिंग डिजिट का ही नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं. अगर हम इनको चेंज कर दें x और y को, तो आपके पास अब टेंस पर x है तो x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और y को 1 से. तो रिवर्स करने के बाद नंबर क्या बन जाएगा, 10x प्लस y. तो अब देखिए इक्वेशन बनाते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. फर्स्ट इक्वेशन इज सम ऑफ द डिजिट्स, x एंड y आर द डिजिट्स. दैट मीन्स देयर सम इज गिवन 9. फर्स्ट इक्वेशन तो बहुत आसानी से बन गई हमारी. सेकेंड इक्वेशन क्या है, 9 टाइम्स द नंबर. इस नंबर का 9 टाइम्स, जो ओरिजिनल नंबर है आपका उसका 9 टाइम्स ट्वाइस होगा इस नंबर का जो आपने रिवर्स करने पर मिला है. तो रिवर्स करने पर हमें ये नंबर मिला, इसका ट्वाइस. दैट मीन्स इसका 9 टाइम्स इसके ट्वाइस के इक्वल है. वी हैव टू फाइंड द नंबर. तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, अब दोनों इक्वेशंस मिल गई हैं, दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे. पहले सेकंड इक्वेशन को थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं. 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 90y प्लस 9x. 2 से करेंगे 20x प्लस 2y. तो x को एक साइड पे कर लेंगे, y को एक साइड पे. यहाँ से 90y और 2y 88y, 20x माइनस 9x 11x बन जाएगा. सो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, x की वैल्यू अगर हम निकाल लें 88/11y, दैट मीन्स 8y. x इज इक्वल टू 8y हमारे पास यहाँ से आ गया है, x और y का रिलेशन. अब इस x इज इक्वल टू 8y को हम इक्वेशन नंबर 1 में अगर सब्स्टिट्यूट कर दें तो बात बन जाएगी, हमारे पास y की वैल्यू आसानी से आ जाएगी. सो सब्स्टिट्यूट x इन इक्वेशन 1. इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. दैट वाज x प्लस वाई इक्वल्स टू 9. तो x की जगह पर आ गया 8y प्लस वाई इक्वल्स टू 9. दैट मीन्स 9y इक्वल्स टू 9. सो यहाँ से y की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 और y 1 आ गया. तो इसका मतलब x कितना हो जाएगा, बिकॉज x वाज 8y तो 8 हो जाएगा. सो यहाँ से x 8 आ गया आपके पास और y आ गया 1. ये दो वैल्यूज आ गई. इसका मतलब हमारा जो 2 डिजिट का नंबर बना है दैट इज x हमने लिया था यूनिट डिजिट, y हमने लिया था टेंस डिजिट पर. तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या बन जाएगा, x आ जाएगा यूनिट डिजिट, y आ जाएगा टेंस डिजिट. सो रिक्वायर्ड नंबर इज 18. दिस इज आवर आंसर. सो सम वन में आप देखो, इसको वेरिफिकेशन कर लेते हैं. अगर आप यहां से इस नंबर का सम करेंगे डिजिट्स का तो x 1 प्लस 8 इज 9. एंड वेरिफिकेशन के लिए देखिए सम 9 आ गया. अब हमें दिया हुआ था 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द रिवर्स नंबर. रिवर्स नंबर विल बी 81. सो इज इट इक्वल 18 9 इज 144, सॉरी 160
2, 18 9 are 162 और 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज ऑल्सो 162, हेंस इट इज वेरीफाइड. सो इसका मतलब रिक्वायर्ड नंबर है वो होगा आपका 18. ठीक है, इसके अलावा और कोई आंसर नहीं हो सकता, ओनली वन ऑप्शन इज देयर. सो 3 parts of the question number 2 we have completed in this video. Press the bell icon so that you can get the notification of the coming questions, coming videos. If you like my videos, so please like, subscribe and share. Thank you very much.